Hari Om, Om Namah Shivaya. I just realized that I talk a lot about Sandhya Vandan, a whole lot actually. And I bring in the principles and ideas from the neuroscience world as a neurologist, as a stroke neurologist. But I haven't really discussed much about Sandhya or Sandhya Vandan, what it is, what is done, what it entails. So I thought today I will just talk about what it is, what is typically done, drawing the information from the Shastras and little knowledge that I have. I'm not a religious guru, so please verify the information that I share and talk to your your guru and your panditji for more clarity and for better understanding. Also, consider reviewing this book called Nitya Puja Prakash, which is published by Gita Press in Gorakhpur, and there are similar other books as well. I also know that people, based on their communities, there is a little slight variation, not a whole lot. The underlying principle of Sandhya Vandan is the same. But my intention is to talk about what it is and then bring in the neuroscientific angle, the neuroscience of the brain, the cognition, how Sandhya Vandan can impact the brain networks and bring about changes through neuroplasticity. So I'm going to talk about that. Sandhya Vandan is the daily science of eliminating our minds. It's a daily science of eliminating the mind. It is a traditional practice, very common in many households, without knowing why it is done. So let's talk about it. Let's talk about it. And I'll speak in English, Hindi, and Sanskrit. So I hope it is understandable to everyone. I hope it is understandable to everyone. That's my goal. So in the Vedic tradition, Sandhya Vandan is far more than a ritual. वैदिक परंपरा में संध्या वंदन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये एक ऐसी दैनिक साधना है जिसका उद्देश्य ध्यान, आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन, बौद्धिक स्पष्टता तथा आध्यात्मिक चिंतन का विकास करना है। It is a daily discipline designed to cultivate attention, self-awareness, emotional balance, intellectual clarity, and spiritual reflection. The ancient rishis recognized that the human mind is easily distracted. Our human mind is easily distracted. Therefore, they developed a structured practice performed at the transitional moments of the day, sunrise, noon, and sunset, to bring the mind back to its center. ऋषियों ने यह समझा था कि मानव मन स्वभावतः चंचल है। हमारे मन का जो स्वभाव है वही चंचलता है। इसलिए उन्होंने दिन के परिवर्तन काल, संध्या काल, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में एक विशेष साधना निर्धारित की, जिससे मन पुनः अपने केंद्र की ओर लौट सके। संध्या में प्रार्थना, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप, आत्मचिंतन तथा अनुशासन सभी सम्मिलित हैं। संध्या कंबाइंस प्रेयर, ब्रेथ रेगुलेशन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार जो हमारी श्वास क्रिया है उसका मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई जस्ट मेड अ वीडियो in which I was talking about how the breathing exercise, the pranayam, influences our brain function. So Sandhya combines prayer, breath regulation, meditation, mantra recitation, contemplation, and self-discipline into a single integrated practice.
From a modern perspective, it may be viewed as a daily program for training attention, regulation of the emotion, and cultivating mental resilience. So, संध्या में प्रार्थना, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप, आत्मचिंतन तथा अनुशासन सभी सम्मिलित है और आधुनिक दृष्टि से इसे ध्यान, भावनात्मक संतुलन तथा मानसिक दृढ़ता के प्रशिक्षण का दैनिक कार्यक्रम कहा जा सकता है। वैदिक परंपरायां संध्या वंदनम न केवलं धार्मिक कर्म अपितु मनसः बुद्धेः चित्तस्य च परिष्काराय निर्मिता दिव्या साधना अस्ति। ऋषयः जानन्ति स्म यत् मानव मनः स्वभावतः चञ्चलम् अस्ति, अतः ते प्रातः मध्याह्ने सायं च येषां कालपरिवर्तनक्षणानाम् उपयोगं कृत्वा मनसः पुनरैकाग्र्यं साधयितुं संध्योपासना विधाय अस्यां साधनायां प्रार्थना, प्राणायामः, ध्यानं, मंत्रजपः, आत्मचिंतनं च समाहितानि सन्ति. So what is the purpose of Sandhya? The purpose of Sandhya is not merely the performance of external action. Its deeper purpose is purification of thought, development of attention, regulation of breath, cultivation of wisdom, remembrance of the divine, and alignment of one's life with truth. The central aspiration of Sandhya is expressed in the Gayatri Mantra. Dhiyo yo nah prachodayat. May our intellect be inspired and illuminated. Remarkably, the mantra does not ask for wealth, power, success, or victory, as I have highlighted multiple times previously. It acts for an enlightened intellect. संध्या का उद्देश्य केवल बाह्य कर्म करना नहीं है, उसका गहरा उद्देश्य है विचारों की शुद्धि, एकाग्रता का विकास, प्राणों का संयमन, विवेक का विकास, ईश्वर का स्मरण, सत्य के अनुरूप जीवन जीना। संध्या का हृदय गायत्री मंत्र में निहित है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को प्रेरित और प्रकाशित करें, यह इसका अर्थ है। विशेष बात यह है कि इस मंत्र में धन, शक्ति, विजय अथवा भोग की याचना ही नहीं है, यह बुद्धि के प्रकाश की प्रार्थना है। संध्यायाः प्रयोजनं न केवलं बाह्य कर्म संपादनम् अपितु अंतःकरण शुद्धिः, एकाग्रता वृद्धिः, प्राण संयमः, विवेक विकासः, ईश्वर स्मरणं, सत्यनिष्ठ जीवनम्। गायत्री मंत्रे संध्यायाः सारः निहितः अस्ति। धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात अस्माकं बुद्धयः प्रकाशयतु, प्रेरयतु च। So that is what is the purpose. So how it is done? First, you do Achman. The practice begins with Achman, the ritual sipping of water while invoking sacred names of the divine. This act symbolizes purification of speech, thought, and action. Om Keshwaya Namaha, Om Narayanaaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Rishikeshaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Each time when you are taking the name of Bhagavan Vishnu, you are imagining, you are thinking of him in his different forms, and it is believed that by taking his name, thinking about him, we are not only purifying ourselves externally but also internally. संध्या का आरंभ आचमन से होता है। ईश्वर के नामों का स्मरण करते हुए जल ग्रहण किया जाता है। यह वाणी, विचार और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आचमनं संध्यायाः प्रथमं कर्म। भगवन् स्मरण पूर्वक जल ग्रहणं क्रियते। एतत् वाणी विचार कर्मणा शुद्धेः प्रतीकम् अस्ति। So when we say पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः, it means that whether you are pure from external, outside or inside, if when you take, whether you are pure or impure, doesn't matter. If when you take the Lord's name, doing Achman, you are purifying yourself externally, not only externally, internally as well.
Then you do pranayama. Pranayama is one of the most important components of Sandhya. Breathing becomes slow, deliberate, and rhythmic. The practitioner recites the Vyahritis and Gayatri while regulating the breath. This harmonizes the body, mind, and attention. प्राणायाम संध्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें श्वास को धीमा, सजग और नियंत्रित बनाया जाता है। व्याहृतियों और गायत्री मंत्र के साथ श्वास का संयमन किया जाता है। इससे शरीर, मन और ध्यान में सामंजस्य उत्पन्न होता है। आप भगवान को याद करते हुए श्वास अंदर खींचते हैं, फिर रोकते हैं, भगवान को अपने हृदय में याद करते हैं। पहले भगवान विष्णु को याद करते हैं, फिर हृदय में भगवान ब्रह्मा को याद करते हैं, फिर भगवान शंकर को याद करते हैं और श्वास बाहर फेंकते हैं। इनहेल करते हैं, रोक के रखते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। और जब आप करते हैं ये, उस समय आप जो है सप्त व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते हैं। तो इस प्रकार जो है आपकी जो एक तो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्रिया है उसमें नियंत्रण आता है। नाक से लेते हैं। कल ही मैंने वीडियो में बताया अपने कि अभी अभी एक नया रिसर्च आया है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार नाक से प्राणायाम करते हुए अगर श्वास का नियंत्रण किया जाए तो उसका किस प्रकार हमारे मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके विषय में एक बहुत अच्छे जर्नल में पेपर है, छपा है, उसमें से बताएगा। प्राणायामः संध्यायाः प्रमुखांगम श्वास प्रश्वासौ शनैः नियंत्रितौ भवतः व्याहृतयः गायत्री मंत्रश्च जप्यन्ते अनेन शरीरम मनश्च सम्यक संयुज्यते। इसके बाद वी ऑफर वाटर टू द सन, अर्घ्य दिया जाता है। वाटर इज ऑफर्ड टू द राइजिंग और सेटिंग सन while reciting the Gayatri mantra. The sun represents light, knowledge, and consciousness. The offering symbolizes gratitude and surrender of ego. And Om Brahma Sarupine Surya Narayanaय नमः। भगवान विष्णु को हम जो है उसमें सूर्य में देखते हैं, उनको याद करते हैं। देखते हैं मतलब लिटरली आंखों से नहीं देखना है, पर उनके स्वरूप को याद करना है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रकाश, ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। अर्घ्यदान कृतज्ञता और अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। गायत्री मंत्रेण सह सूर्याय अर्घ्य दीयते सूर्य प्रकाशस्य ज्ञानस्य च प्रतीकः अर्घ्यदानम अहंकारस्य समर्पणम सूचयति। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। द गायत्री मंत्र इज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज मोस्ट प्रोफाउंड प्रेयर्स। इट सीक्स नाइदर वेल्थ नॉर वर्ल्डली सक्सेस, instead it seeks illumination of the intellect. This mantra asks that our minds be guided towards truth, wisdom, and right understanding. गायत्री मंत्र, उसका पूरा उच्चारण तो मैं नहीं करूंगा। गायत्री मंत्र मानव सभ्यता की सबसे महान प्रार्थनाओं में से एक है। यह धन, शक्ति या भौतिक सफलता की याचना नहीं करता, यह बुद्धि के प्रकाश की प्रार्थना करता है। प्रचोदयात, यह धातु का प्रयोग हुआ है। यह मंत्र हमारी बुद्धि को सत्य, विवेक और उचित ज्ञान की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना है। गायत्री मंत्रः मानव सभ्यतायाः महानतमासु प्रार्थनासु अत्यतमः अस्ति। गायत्री मंत्रः मानव सभ्यतायाः महानतमासु प्रार्थनासु अन्यतमः अस्ति। अत्र न धनं याच्यते, न राज्यं याच्यते, न विजयः याच्यते, केवलं बुद्धेः प्रकाशः याच्यते। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। और कुछ चीजें होती हैं जो कि एक्सपीरियंस ही की जा सकती हैं, मेरे बताने से इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। देयर आर थिंग्स व्हिच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। अ टीचर कैन ओनली, a lecturer, a professor can only talk about it, but you have to experience it yourself.
You have to experience it yourself. Certain things just cannot be. You have to realize it. You have to realize it. But I thought it will be useful to at least know what it entails, and people who practice it on a regular basis, and similarly other spiritual exercises, they have that realization and they enjoy it. This is essentially what many people do when they go for meditation classes, just that they use different examples to meditate, to stimulate attention, visual imagery, divided attention, avoiding divided attention, all these different exercises. That's what they do. So, although Sandhya Vandanam was developed thousands of years before the modern neuroscience, several of its components overlap with practices now studied scientifically. And these include breath regulation, attention training, repetition, meditation, daily habit formation, emotional self-regulation. Regular practice of these activities is known to influence brain function through neuroplasticity. यद्यपि संध्या वंदन की परंपरा आधुनिक न्यूरोसाइंस तंत्रिका विज्ञान से हजारों वर्ष पुरानी है, इसके अनेक अंग कंपोनेंट्स आज वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है, जिसमें प्राणायाम सम्मिलित है, ध्यान सम्मिलित है, एकाग्रता, प्रशिक्षण, पुनरावृत्ति, अनुशासित दैनिक अभ्यास, भावनात्मक नियंत्रण, इन सभी का संबंध न्यूरोप्लास्टिसिटी अर्थात मस्तिष्क की परिवर्तनशीलता से माना जाता है। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ध्यान और श्वसन पर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं, जबकि संध्या वंदन पर प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अध्ययन अभी सीमित है। Regular practice of these activities is known to influence meditation, daily habit formation, emotional self-regulation, all these, they influence the brain function through neuroplasticity. It is, however, and it's important for me to say this as a scientist, that to distinguish between established scientific findings and hypotheses, it is very important to distinguish. While meditation and controlled breathing have substantial evidence, direct scientific studies of Sandhya Vandanam itself remain limited. And why it is limited? Because करेगा कौन? हमारे ही संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, उन्हीं से निवेदन है कि वही हमारे मेडिकल या न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंस के जो संस्थान हैं उनके साथ मिलकर एक रिसर्च वगैरह करें, जिससे कि जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं जो एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो हमारे शास्त्रों में दी हुई बातों को आधुनिक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल वगैरह, ऑब्जर्वेशन स्टडीज के माध्यम से इन्वेस्टिगेट करके प्रूव करें, दिखाएं कि जो है मस्तिष्क में उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अटेंशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको न्यूरोसाइकोलॉजी के तरीके से माध्यम से टेस्ट किया जा सकता है। एमआरआई करके कॉर्टिकल थिकनेस असेस की जा सकती है। ईईजी करके ब्रेन की तरंगों को देखा जा सकता है कि उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। वही चीज़ वेस्ट में लोग करते हैं। रिसर्च कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहलाता है, कॉग्निटिव न्यूरोलॉजी, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। तो हमारे शास्त्रों के ज्ञाता लोग इस प्रकार का रिसर्च करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यही हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का पर्पस होना चाहिए, हो सकता है। यद्यपि संध्या वंदन परंपरा आधुनिक तंत्रिका विज्ञानात् सहस्र वर्ष पूर्वा अस्ति, तथापि अस्याः अनेकानि अंगानि अद्य वैज्ञानिकैः परीक्ष्यन्ते, यथा प्राणायामः, ध्यानम्, एकाग्रता शिक्षणम्, पुनरावृत्तिः, नित्याभ्यासः, भावना नियमनम्। एतेषां सर्वेषां सम्बन्धः न्यूरोप्लास्टिसिटी इति आधुनिक संज्ञया कथ्यते। Sandhya Vandanam is not merely a ritual, it is a daily discipline for refining attention, character, intellect, and consciousness. At its heart lies one of the noblest aspirations ever expressed, Dhiyo yo nah prachodayat,
May our intellect be inspired. May our understanding be illuminated. May our lives be guided by wisdom. संध्या वंदन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है. It is not a religious activity. It is not a religious activity based on how I look at it. यह ध्यान, चरित्र, बुद्धि और चेतना के विकास की दैनिक साधना है. इसके हृदय में निहित है मानवता की एक महानतम प्रार्थना, धियो यो नः प्रचोदयात्. हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, हमारा विवेक जागृत हो, हमारा जीवन ज्ञान द्वारा निर्देशित हो. संध्या वंदनम न केवलम कर्मकांडः, एषा मनसः बुद्धेः चरित्रस्य चेतनायाश्च परिष्कार साधना अस्ति. अस्याः हृदये ऋषीणां महान् प्रार्थना वर्तते, धियो यो नः प्रचोदयात्. अस्माकं बुद्धयः प्रकाशयतु, अस्माकं विवेकः जागरूकः भवतु, अस्माकं जीवनं ज्ञानमार्गेण नीयताम्. हरि ओम. ओम तत्सत्. ओम तत्सत्. So as we conclude, let us remember that Sandhya Vandanam is much more than an ancient ritual. For thousands of years, our ancestors paused 3 times each day, not to escape life, but to return to what is most important. They paused to regulate their breath. They paused to return. They paused to train their attention. They paused to examine their thoughts. They paused to remember that wisdom is greater than wealth and character is greater than power. At the heart of Sandhya Vandanam lies one of the humanity's most beautiful prayers. Dhiyo yonah prachodayat. May our intellect be inspired. Notice what the Vedic sages asked for. They did not ask for riches. I've said this multiple times, actually. They did not ask for fame. They did not ask for victory over others. They asked for an enlightened intellect. In an age of distraction, information overload, anxiety, and constant stimulation, perhaps this ancient prayer is more relevant than ever before. Whether one approaches Sandhya Vandanam as a spiritual discipline, a contemplative practice, or a daily exercise in attention and self-reflection, it offers an opportunity to pause, breath, reflect, and reconnect with higher ideals. As always, any discussion of the neuroscience in this context should be viewed as hypothesis generating. It should be viewed as hypothesis generating and educational. Ancient practices deserve both respect and rigorous scientific investigation. If this video inspired you, I encourage you not merely to watch, but to practice. Even a few minutes each morning can begin a lifelong journey of self-transformation. अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि संध्या वंदन केवल एक प्राचीन कर्मकांड नहीं है. यह आत्मचिंतन की एक महान परंपरा है. हमारे ऋषियों ने दिन में 3 बार रुकना सिखाया, अपने मन को देखने के लिए, अपनी श्वास को संयमित करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए और अपनी बुद्धि को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए. गायत्री मंत्र का हृदय है, धियो यो नः प्रचोदयात्. हमारी बुद्धि को प्रेरित करें. ध्यान दीजिए, ऋषियों ने इसमें धन नहीं मांगा. इस मंत्र में, इस पूजा में राज्य भी नहीं मांगा, विजय नहीं मांगी. उन्होंने बुद्धि का प्रकाश मांगा. उन्होंने कहा हमारी बुद्धि को प्रेरणा मिले. आज जब हमारा मन निरंतर विचलित रहता है, तब यह वैदिक प्रार्थना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है, रेलेवेंट लगती है. यदि इस चर्चा से आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि केवल इसके बारे में पढ़ें नहीं, इसे अपने जीवन में अपना कर देखें. कुछ मिनट प्रतिदिन भी आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं. अन्ते केवलम एतदेव वक्तुम इच्छामि यत् संध्या वंदनम न केवलम प्राचीन कर्मकांड अस्ति, एषा आत्म परिष्कारस्य महान मार्गः अस्ति.
ऋषयः अस्मान् शिक्षयन्ति क्षणमेकं विरमाम स्वमनः पश्याम स्वप्राणान् नियक्षाम स्वबुद्धिं प्रकाश मार्गे नयाम। गायत्री मंत्रस्य सारः अस्ति धियो यो नः प्रचोदयात् अस्माकं बुद्धयः प्रेरयतु प्रकाशयतु। ऋषिभिः न धनं याचितं न राज्यं याचितं न विजयः याचितः केवलं बुद्धैः प्रकाशः याचितः। अद्यतन काले यदा मनुष्यस्य मनः निरन्तरं विक्षिप्यते तदा एषा वैदिकीय प्रार्थना अधिकमेव प्रासंगिकी भवति। यदि एषा चर्चा भवता हृदये प्रेरणां जनयति तर्हि केवलं श्रोतुं न अपि तु आचरितुं प्रयतध्वम्। लघ्यपि नित्याभ्यासः महान् परिवर्तनस्य कारणं भवितुम् अर्हति। सर्वेभ्यः मम हार्दिक धन्यवादं। नमो नमः। ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्कार। ओम तत्सत। I hope you all liked this lecture and found it useful. May we seek not merely information but illumination. With this prayer, I will bid you a bye for now. वयं केवलं ज्ञान संग्रहं न अपि तु बुद्धेः प्रकाशम् अन्विषामः। धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम।